سر جی سر جی کیسے؟ سر میں بالکل ٹھیک سر. میں نے ابھی چیک کیا, میرا کل کی پوری اسٹریم میری خراب ہو گئی. میں نے اسٹریم یارڈ میں چیک نہیں کیا کہ میرا جو مائک ہے وہ اسٹریم یارڈ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا کہ نہیں, تو وہ یہ والا مائک یوز کرتا رہا اور ساری ساؤنڈ کی کوالٹی نا اوکی سی ہے. لیکن چلو, لیکن ایک ویڈیو کی کوالٹی بہرحال اچھی ہو گئی ہے. سر میں نے آپ سے ایک دو کوئکلی باتیں کرنی تھی, میں اگر آپ اجازت دیتے ہیں. ابھی آپ اس کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے قرآن نے حضرت محمد نے بونگی مار دی کہ موسیٰ کی ماں مریم ہے, وہ اس کو مکس گڑبڑ کر دیا. اور ایک اور جو بہت بڑی غلطی انہوں نے سورہ توبہ کی جو 30ویں آیت ہے جس میں بونگی مار دی, انہوں نے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزرا یا عزیر جو ہے وہ سن آف اللہ ہے, اور یہودی کہتے ہیں بھائی ہم نے تو یہودی کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے. اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, دور دور تک کوئی چانس ہی نہیں ہے اس کا. عزرا سر, وہ عزرا وہ تھا, اگر آپ میری اسکرین شیئر کر سکیں. عزرا سر وہ آدمی تھا. اسکرین شیئر کریں آپ, پہلے آن کریں اسکرین شیئر. یہ قرآن کی سورہ توبہ کی 30ویں آیت ہے کہ جیوز کہتے ہیں کہ عزرا ہمارا اللہ کا بیٹا ہے, اور کرسچن کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ دونوں بیس لیس اسرشنز ہیں, اور جو پرانے کافر تھے یہ ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اللہ ان کو کنڈیم کرتا ہے, وہ اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہیں, یہ اللہ بتا. تو یہ جو عزرا از دی سن آف اللہ, یہ یہودی بیچارے کہتے ہیں بھائی ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے. نہیں, انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. کیونکہ دیکھیں اگر اب بائبل میں جو پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی وائلیشن کرتی ہے. یس, کرسچینٹی کو بڑا جو ہے نا, کرسچینٹی نے یہ کیا. اچھا, اب میں کچھ دن سے وہ چیز پڑھ رہا ہوں, میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. جو نیومنسٹک ایویڈنس ہے کہ جی قرآن میں جو سکے شکے ہیں وہ پہلے جو جاری ہوئے, یہ میں نے کل پرسوں کا مارک کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا جی, اب عبد الملک جو ہے نا, بیسیکلی وہ ایسے لگتا ہے کہ اسلام اس نے شروع کیا, کیونکہ اس سے پہلے کوئی محمد کا نام لیتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کوئی محمد کا نام ہی نہیں لیتا. اب عبد الملک کے جو سکے تھے ان کے اوپر سب سے پہلے محمد کا نام آنا شروع ہوا, اور اس کے بعد سے ہی محمد کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں جی. یہ بک بھی بڑی اچھی ہے, آپ بھی دیکھیے گا, کراس روڈز ٹو اسلام, اگر آپ کا ہو پڑھنے کا موڈ. تو بات آ گئی ہے سامنے, تو میں نے کہا میں ذرا شیئر کرتا ہوں یہ بھی. یہ دیکھیں جی, یہ ہے جی ادھر, یہ جو ہے نا عبد الملک کی رین سے یہ تھا جو کہ سکوں کے اوپر اور آگے پیچھے جو خط بھی یہ لکھتے تھے ان کے اندر یہ تھی جو یہ توحید لکھتے تھے, وہ یہ تھی: ان دا نیم آف اللہ, دا کمپیشنیٹ, دا مرسیفل, دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, محمد از دا میسنجر آف اللہ. یہاں سے انہوں نے یہ لکھنا شروع کیا. اس سے پیچھے یعنی یہ کلمہ یہاں سے شروع ہوا, کیونکہ قرآن میں بھی itself ایسا کلمہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ اللہ ایک خدا, محمد اس کا آخری نبی ہے. ہاں, تو اب پھر یہ جو ہے پھر آ گیا ان دا نیم آف اللہ, کمپیشنیٹ, دا مرسیفل, دیر از نو گاڈ بٹ اللہ alone. alone کا ورڈ ایڈ ہو گیا. جو توحید ہے وہ مزید ایوالو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 89 سے 707 میں ہے. پھر محمد از دا میسنجر آف اللہ, دس از واٹ دا امیر, آگے عبد الملک ہیز ordained, may God help me in good health, help him in good health. اچھا, اب آگے دیکھیں توحید پھر اب ہو رہی ہے 716 سے لے کے 17, یہ عمر 2 کے دور میں. ٹھیک ہے, جو ہم عمر بن عبد العزیز جس کو کہتے ہیں, جس کی ابھی قبر کے اوپر حملہ ہوا تھا. The compassionate and the merciful, there is no God but Allah, he has no sharik. ٹھیک ہے, وحدہ لا شریک اللہ, there is no God but Allah, لا الہ الا اللہ, he has no شریک, لا شریک اللہ, he did not beget and was not begotten. اب کرسچنز یہ کہتے ہیں نا only begotten son of God, Jesus Christ. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی اس کی نفی کر رہے ہیں, اس کی نفی کر رہے ہیں. محمد is the messenger of God, he sent him with guidance and the religion of truth. ٹھیک ہے, پھر آگے servant of God, امیر, پھر اس کا پرسنل نیم. بلکہ ایون پھر اسی کتاب کے اندر میں دیکھتا ہوں, ایک سیکنڈ, اس سے پیچھے والا شاید ہوگا. اچھا, اب یہ دیکھیں, یہ بڑے مزے کی ہے. عبد العزیز برج انسکرپشن آف 69 آفٹر ہجری. ٹھیک ہے جی, ایگزیبٹنگ اونلی انٹرمیڈیٹ مونوتھیزم, پہلے یہ انٹرمیڈیٹ کنٹراسٹ ود ڈیکلریشن ہی فکسڈ ٹو دا ڈورز آف دا چرچز ان ایجپٹ ایٹ سم پوائنٹ آفٹر 70 AD. جو مروان بن حکم کا جو بیٹا تھا نا, عبد الملک بن مروان, اس کا بھائی تھا عبد العزیز, جس کو اس نے مصر کا گورنر بنایا تھا. وہ کیا کہتا ہے, اس نے چرچز کے اوپر کیا لکھوایا تھا, محمد از دا گریٹ میسنجر, رسول الکبیر,
रसूल अल कबीर यहाँ पे आखिरी पहले ये नबी नहीं नहीं कह रहा, आखिरी नबी नहीं हाँ। कह रहा, ठीक है ना, उसे उस तरह कह रहा है, हु इज गॉड्स एंड जीसस टू इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, गॉड डज नॉट बिगेट एंड इज नॉट बिगॉटन, ये फिर ना उसकी खुदा जीसस की किसी से नफी हो पैदा रही है, हुआ मसीहियों के अकीदे की नफी की जा रही है, उसको यानी करेक्ट हाँ, किया जा रहा है अपनी तरफ से। यानी आप ये देख सकते हैं कि जो इनका मजहब था बेसिकली वो एक रिएक्शन था क्रिश्चियन थियोलॉजी का। अब आप ये देखें कि बेसिकली हमें साफ बात ये नजर आ रही है कि ये क्रिश्चियन थियोलॉजी की नफी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशन हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है। पहले इवन के इनकी तौहीद जो उम्मियों के दौर में, अब जो ये डिवाइड करते हैं इस्लाम की हिस्ट्री को दो तरह से, कहते हैं जी उम्मी दौर और अब्बासी दौर, मगर जो मॉडर्न हिस्टोरियन है वो डिवाइड कर रहे हैं सुफियानी दौर जो, और फिर मरवानी दौर, मरवान बिन हकम के जो बच्चे हैं उनका दौर, और फिर अब्बासी दौर। तो सुफियानी दौर में, हाँ जी सर इसमें आपका क्या ख्याल, आपका इसमें क्या ख्याल है, जैसे जितने 6 के 6 कलमे हैं ये कुरान में डायरेक्टली कहीं नहीं है, ये आलमों ने लिखे हुए, जो पहला कलमा जो है वो भी इवन डायरेक्टली कुरान में नहीं है। हाँ ये बातें हैं कि अल्लाह, और एक ही आयत है जिसमें खातमुन नबिय्यीन बताया गया है और बाकी जगहों पे अल्लाह का रसूल है, लेकिन इस तरह ऐसा कलमा करके नहीं बताया गया कहीं पे भी कुरान में। तो ये बात की सारी इस तरह हाथ लगती है, और ये जो आपने एविडेंस दिया ये बड़ा कन्विंसिंग है। प्लीज ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि पहले अब्दुल मलिक ने कुछ कहा, फिर उसने इवॉल्व होकर कुछ और गया, फिर अब्दुल अजीज के जमाने में जाके और कुछ हो गया। तो और इससे साफ पता चल रहा है ये एवोल्यूशन है, और यही वजह है कि कलमा जो कहा जाता है, जो जिसके ऊपर इन्होंने इतना झगड़ा बना दिया, ये अहमदियों वगैरह का जितना पूर्व शियों वगैरह हर चीज में जो इतना दुश्मनी है वो सिर्फ कलमे के ऊपर है, और कलमा डायरेक्टली कुरान में तो है ही नहीं, ये तो सबको पता है हमेशा से नहीं है। तो अब वो यही बात है कि देखें ये किस तरह की सिचुएशन है सारी, कि हमें नजर आ रहा है कि इस्लाम इवॉल्व हो रहा है और कुरान नहीं है इस वक्त। फिर इसी बुक में मैंने काफी चीजें मार्क करके रखी हैं, उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा बकायदा। ये यूं भी करते हैं कि एक वो था, क्या उसका नाम है, जॉन ऑफ डमास्कस, वो इनके साथ बहस कर रहा था, वो इनके साथ बहस करता है और वो इनको कहता है कि फलां चीज कुरान में लिखी है और फलां चीज सूरह बकरा में लिखी है, और वो इनके ऊपर ये इल्जाम लगाता है कि मोहम्मद जो तुम्हारा नबी है उसने छोटी छोटी कई किताबें लिखी हैं। वो ये नहीं कहता कि जी कुरान है, वो कहता है छोटी छोटी कई किताबें उसने लिखी हुई हैं। ये जॉन ऑफ डमास्कस का ये किस जमाने का सर? ये सर तकरीबन 8th सेंचुरी के शुरू का, ठीक है, मतलब नहीं 8th के नहीं 8th के तकरीबन मिड का, यानी ऑलमोस्ट 120 साल बाद, 120 साल बाद, ठीक है। तो फिर इवन के ये मिलते हैं जाके, इनका जो वो है ना उमर बिन अलास मिलता है, वो जॉन द सेकंड होता है उससे, और जॉन द सेकंड उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई गवर्न करने के लिए कानून है जो कि तुम्हारी बाइबल में है, गॉस्पेल में? तो वो उन्हें कहता है हाँ हमारे पास कानून है, ठीक है। तो इवन के वो ये चीज नहीं खत्म करता कि भाई हम तुम पे इस्लामी शरीयत नाफिज करेंगे, वो कहता है तुम अपने कानून के मुताबिक खुद को गवर्न करो, अगर तुम्हारा कोई कानून नहीं है तो तब तुम हमारे लॉ के नीचे आओगे। और वो भी लॉ जो है वो उसको वो नहीं कह रहा था कि जी ये कोई बड़ा इस तरह का लॉ है, इस्लामी शरीयत है या कुछ, और मोहम्मद का जिक्र कहीं नहीं है, कोई है ही नहीं जिक्र कहीं पे भी। अब्दुल मलक के बाद से मोहम्मद का जिक्र मिलना शुरू होता है सारे का सारा, और अब्दुल मलक ही पहली दफा डोम ऑफ रॉक पे मोहम्मद का नाम लिखवाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है सारी आजकल ये हो रही है। और मतलब मैंने उसकी उज़ैर के ऊपर कहना था, उज़ैर के ऊपर जो मुसलमानों का कुछ क्लेम्स हैं, एक तो नंबर क्लेम वो ये कहते हैं कि कुरान में ने जब कहा है कि हिंदुओं, क्योंकि मुसलमानों का यकीन है कि कुरान के अंदर हर चीज सही है, तो वो और ये लेकिन इतनी भोंगी है, इतनी बड़ी गलती है कि आलम बेचारे अब क्या करें वो। तो उसका जवाब वो ये देते हैं कि यमन में एक ऐसा, वही हवाई फायर, यमन में एक ऐसा यहूदियों का ग्रोह था जो उज़ैर को वाकई ही खुदा का बेटा मानते थे। पहली बात ये कि उज़ैर कौन था? उज़ैर इनका एक पुराना रहबा था, इनका पादरी था यहूदियों का, जिसने तालमूद को इकट्ठा किया था। अज़रा को उज़ैर ये कहते हैं, हाँ अज़रा को, उसने तालमूद को इकट्ठा किया था, यानी उनका एक रिस्पेक्टेड थियोलॉजियन था जो कबल मसीह की बात है। एक कोई 2 सफ़े का सहीफा है ओल्ड टेस्टमेंट में अज़रा का ना, अच्छा 2 सफ़े का यहाँ लंबा है, मुझे सही याद नहीं है वो रबाई था।
हाँ वो रब्बाय था बेसिकली, उसका जो मेन कारनामा था उसने तालमूद को इकट्ठा किया था बेसिकली। तो इससे ज्यादा उसकी यहूदियों में कोई खास हैसियत नहीं थी, स्पेशली मोहम्मद के जमाने में भी। तो ये जो दावा किया जाता है कि ये इसलिए किया गया कि सिर्फ एक यमन के थे, चलो मान लिया अगर वाकई, पहली बात ये साबित नहीं हो सकता, फिर हवाई फायर है कि मान लिया कि वाकई यमन में या ओमान में उस नीचे सदर्न अरेबियन पेनिनसुला में एक ऐसी कबीला था छोटा सा, या 2-3 कबीले थे जो यहूदियों के जो अजरा को मानते थे खुदा का बेटा, तो फिर भी आपने एक ऐसी छोटी सी चीज के ऊपर थोड़ी कुरान की आयत उतार दी आपने, तो जो ओवरऑल एक ग्लोबल बुक के अंदर एक छोटे से फिरके के ऊपर जो इल्जाम बनता था वो आपने सारे यहूदियों पे लगा दिया, तो मतलब गलत है ना। और अगर लगाना है, अगर आपने उनको करेक्ट करना, तो आप यहूदियों के और क्लेमों को करेक्ट करें ना, जो मेन जो है उनके जो ओवरऑल है यहूदियों। अब जैसे फर्ज करें अल्लाह एक और पैगाम भेजता है और अल्लाह ये ना बताया कि सुन्नी और शियों के दरमियान क्या उसकी राय है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अल्लाह सिर्फ एक बता दे, एक छोटा सा कोई कबीला हो सरगोदा में जो पीर बाबे को मानते हो, अल्लाह उसको कहे कि ये मुसलमान जो है ना ये काम करते हैं, आप कहे हैं यार मुसलमान तो ऐसा करते नहीं, छोटा सा कबीला है। आज के दौर में आप कादियानियों का इस्लाम उठा के कहना शुरू कर दे इस्लाम तो ये मानता है। हाँ एग्जैक्टली, यानी आप ये कहते हैं कि मुसलमान ये मानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, तो 100 साल बाद 1000 साल बाद आपको यार मुसलमान हो सकता है ये मानते हो, लेकिन हमें तो पता है कि वो ये नहीं मानते। तो ये बड़ा भोंडा क्लेम है। और मुफ्ती अबू लैथ का इसके ऊपर बहुत ही, यानी उन्होंने मेंटल जिम्नास्टिक की हद कर दी इसके ऊपर। उन्होंने कहा हाँ नहीं, वो इस आर्गुमेंट को, जाहिर बात है वो कहते हैं कि हाँ ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह एक छोटे से कबीले की, अगर ऐसा हो भी तो एक छोटे से कबीले के लिए पूरी आयत उतार दो, बाकी यहूदियों को इग्नोर करते हैं, जो कि बड़ी रैशनल सा आर्गुमेंट है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, वो यहां से इस्लाम मार के दूसरी तरफ लोग चले जाते हैं। तो वो कहते हैं असल में एजरा जो है ना, एजरा ओसाइरस से मिलता है। तो ओसाइरस जो इजिप्शियन गॉड था, उसको भी एंशिएंट शुरू के इजिप्शियंस उसको गॉड का बेटा मानते थे। तो मे बी अल्लाह मियां वाज एड्रेसिंग दोस पीपल जो ज्यूज उस वक्त के ज्यूज थे, अल्लाह मियां उनको एड्रेस कर रहे थे। यानी ये तो गांधी में बड़ी कलाबाजी है यार, ये सर ये बहुत बड़ी कलाबाजी है। मैंने उनको प्राइवेटली मैंने कहा सर ये क्या, सर आप कहते बस ये है ये अब इस पे क्या